Good afternoon, ladies and gentlemen, and Honorable Minister. We are basically talking about a much talked about subject, and all of us are quite aware of what global warming, climate change. This is something that is some sort of a buzzword now for the last 5 to 10 years, even amongst school children now. My daughter wants to sort of go into a career in this space. She had evinced interest. So it's something that all of us are aware about. But when we talk about global warming, the common image that most of us carry about global warming is a very lasting image which has been there for some time with some of us, all of us I would say. Global warming means melting glaciers, Antarctica ice is sort of melting and sea levels are rising, that is one area. A very strong impression is the polar bear is some sort of a mascot of climate change, and people feel bad that the polar bear will not have a habitat because Arctic ice is not going to be there after some time. And somewhere down the line, this word global warming is actually making this whole problem so global that it becomes less local, and something that is less local becomes not so high priority unless a major event happens, like we had some major rain-related problems sometime back in Kerala, sometime back in Assam, in Srinagar. This year, I remember in January, February in 22, I think we had highest rainfall. I know it because some mango trees in my vicinity completely sort of got damaged, and we don't know what would have been the impact on so many other crops, etc. Then we have just recently the Pakistan floods, which was in the news, and it's something that could quite easily happen to India, in another month or another year. So global warming, is not something that is that's something to be, in a spatial manner. It's something very far away. It's not going to hit me. Or people like me, I am from Bombay. I have a house, quite near the sea. So my wife keeps saying, global warming में पानी ऊपर के आएगा, पता नहीं वर्सोवा में बिल्डिंग का क्या होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पवई में जाना चाहिए, पूना में जाना चाहिए. So this is also a point that all of us think कितने साल में होगा? 15-20 साल के बाद होगा. 15-20 साल बहुत टाइम दूर की बात है, तब देखेंगे. So this whole thing about in time and space, this warming, global climate change is not something that we have taken very seriously. Now, when we look at the statistics of, I'm just talking about human beings, and and the Honorable Minister will sort of have a point of view on this. We are 8 billion people. India is 1.4 billion people. If you see the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, which is the area where heat-related, global warming related problems are going to be much more than other places. I mean, of course, it's going to impact other places also, but the climate impact is going to be so severe that some of these places are going to be difficult to live in. Now, if you look at the total, the map, around the map, many parts of it is ocean, a large part of it is Sahara, and therefore human habitation is less. When you look at the total human population in this area, about 400 million is in northern part of South America, which is the Amazon, etc. About 100 million is in the sub-Saharan Africa, which is that makes it 500 million. Another 600 to 650 million, almost 0.7 billion, is Southeast Asia. And South Asia has totally 2 billion people. So the total of 3 billion human beings who are going to get impacted, 2 billion are in South Asia and 1.5 billion are in India. I'm talking about over the next 5-10 years. So 50% of the human problem of global warming in terms of the real impact is going to be in India. So we at Times Network propose to, in fact, over a period, start, popularizing this term India warming, because we feel that India action is way more, imminently required. And it also means that it probably could be an opportunity, because if we do that early enough and for such a large market, that could be an opportunity. So this is in that context that I wanted to sort of, open this up, sir. So as I said, I have, basically 3 areas. When we look at this whole global warming thing, and India being so important, and India being such a in the crosshairs of climate change, as I would say, we expected, the so-called National Action Plan for Climate Change, which is the government of India's, a major action plan, which I think was started
in 2008 or so, and it is currently, it has 8 different missions on solar energy, on general energy, on habitat, on water, on the Himalayan ecosystem, greening India, sustainable agriculture, and a mission called a strategic knowledge. Now, when I looked at it, I realized that this is operating under multiple ministries. There is science and technology, there is environment, there is agriculture. There's multiple ministries which are involved in this. My question, sir, and you can take that and sort of give a lot more than what I'm asking you, is isn't it time that the environment ministry becomes a sort of a superpower amongst all these ministries in this particular commission, this particular effort? Thank you very much. क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, इसकी प्रॉब्लम भी ह्यूमन है, और अगर धरती को खतरा है तो केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं है, धरती पे रहने वाले सब लोगों को है। नेचर का अपना एक बैलेंस का सिस्टम है। ये 2022 स्टॉकहोम 50 का ईयर है। 1972 में पहली बार दुनिया ने स्टॉकहोम में आकर के ये चिंता करी थी कि जिस प्रकार की औद्योगिक क्रांति से मनुष्य निकला है और उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ने वाला है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली अपने यहाँ कार्बन एमिशन करके जो धरती का टेम्परेचर पिछले लाखों सालों में नहीं बढ़ा, उतना अकेला पिछले 100 वर्ष में बढ़ा है। और जितनी भी जलवायु की चुनौतियां हैं, ये उस तापमान बढ़ने के कारण है। वैज्ञानिकों का आईपीसीसी की रिपोर्ट का अध्ययन ये बताता है कि चाहे गर्म हवा हो, चाहे अधिक बारिश हो, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, ये सब उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ जो शुरू में फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा जो विषय है, जो हमारा फ्लोरा और फोना है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका भी जो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, उसको भी जो थ्रेट है, उसके कारण भी एक इम्बैलेंस होने का खतरा है। और इसलिए समस्या ग्लोबल है और इसका समाधान भी वहीं से संभव है। क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई है, उन्होंने सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली एमिशन किया है। और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को इसके लिए कंपनसेट करें। और अगर हमें दुनिया में नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे आना है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के 2 बड़े प्रिंसिपल हैं, पहला क्लाइमेट जस्टिस और दूसरा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। तो हर आदमी को डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए एनर्जी का पाने का अधिकार हो। और एनर्जी अब दुनिया में रिन्यूएबल पे जितना हम जाएंगे, उतना ही दुनिया को गर्म होने से बचा सकेंगे। और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। उसके साथ ही साथ जो डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है और बायोडायवर्सिटी की थ्रेट को भी बचाया जाए। भारत सरकार ने जो नेशनल स्तर पर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, उसको केवल विभिन्न मंत्रालय लागू नहीं करते, राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। हर स्टेट का भी अपना एक एक्शन प्लान होता है। और इसलिए भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने एनडीसीज, जिसको नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने पेरिस में जो अपने एनडीसी घोषित किए, उसको प्राप्त भी किया। हमने कहा कि हम रिन्यूएबल के सेक्टर में 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे। हमने 9 वर्ष पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने कहा कि हम 30 से 33% कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, उसको हमने प्राप्त किया। और एनहेंस एनडीसी अभी सबमिट करने वाले देशों में दुनिया में 30 ही देशों ने सबमिट किया, उसमें से भारत एक है।
उसके साथ ही साथ पिछली बार ग्लासगो में जब ये कहा गया था कि दुनिया के सब देश इस प्रोसेस में कब नेट जीरो पे आएंगे, उसका डिक्लेरेशन करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत को 2070 तक नेट जीरो घोषित करने का लक्ष्य किया। फिर ये कहा कि आपने नेट जीरो घोषित करा है तो आपका लो कार्बन एमिशन प्रोग्राम क्या है, उसको भी चॉकआउट करें। वो भी हमने COP27 में किया और केवल 60 देशों ने 192 में केवल 60 देशों ने ही ये सबमिट किया, भारत उसमें से एक है। लेकिन आने वाले समय में जो 3 बड़े विषय हैं कि अब केवल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी और आज ISA में दुनिया के 100 से ज्यादा सदस्य और उसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। ये प्रधानमंत्री जी का विजन का सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, जिसको दुनिया के सब लोग मानते हैं कि फ्यूचर इस सोलर में है। दूसरा, जितना भी जलवायु के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खतरा है, उसके लिए भारत ने CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम बनाया। आज दुनिया के 40 से ज्यादा देश उसके सदस्य बने हैं कि फ्यूचरिस्टिक हमको क्लाइमेट रेजिस्टेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा करना होगा। और तीसरा, जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टोरियल ऐसे क्षेत्र हैं जैसे स्टील सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उन हार्ड टू अबेट सेक्टर को हम ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ कैसे लेकर के जाएं। स्वीडन के साथ भारत का एक ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बना है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम में एक तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इस सारे खतरे में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है, उनके लिए लॉस एंड डैमेजेस की व्यवस्था होनी चाहिए। और COP27 में भारत के प्रयासों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण लॉस एंड डैमेज फंड पे सहमति बनी। और उसके साथ ही साथ पिछले 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल कॉल दिया था और पिछले 19 अक्टूबर को गुजरात में एकता नगर में UN जनरल सेक्रेटरी के आगे उन्होंने मिशन लाइफ को दिया था कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए हमको माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाना चाहिए, ना कि माइंडलेस यूटिलाइजेशन की ओर। और इस बार COP27 में जो फाइनल नोट आया, उसमें भी उसको एज ए प्रिंसिपल ही माना कि हमको माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। ये भारत का योगदान रहा और इसी तरीके से हम ये जो आपने एक सबसे बड़ा क्षेत्र जो वल्नरेबल क्षेत्र है, उसको बचाने का काम भी कर सकते हैं। सर, ये जो आपने बोला कि माइंडफुल कंजम्पशन अगेंस्ट माइंडलेस यूटिलाइजेशन, ये एक इंडिविजुअल सिटीजन या कंपनी या गांव या शहर या कोई कम्युनिटी, उन तक इसको एक्शन में कन्वर्ट करने का कोई प्रोग्राम अभी मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने अगर दिखता तो हम भी उसके अंदर होते, बिकॉज एज मीडिया हमें रहना चाहिए उसके अंदर। लेकिन एक्शनेबल अगर ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम होगा? अभी नीति आयोग ने एक 75 पॉइंट बनाए हैं और उन्होंने जिसको कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न में, अपने बिहेवियरल चेंज में हम कौन सी छोटी छोटी आदतें 75 कर सकते हैं, वो नीति आयोग ने एक पेपर सर्कुलेट किया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से भारत सरकार में भी एक पूरी प्लानिंग इसके लिए तैयार की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी 5 जून को वर्ल्ड लीडर्स को कॉल किया था और इस COP में भी UNEP की जो सेक्रेटरी जनरल है एंगर एंडरसन, UNDP के जो लोग हैं, UNFCCC के जो लोग हैं, उन्होंने भी इंडियन पवेलियन में आकर के इसको शुरू किया था। हम अपनी छोटी सी शुरुआत के साथ जो प्रधानमंत्री जी का जो लाइफ का मिशन है, चाहे अपने वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के पर्सनल कंजम्पशन के यूज के साथ लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करें, इसको लेकर एक पूरा एक्शन प्रोग्राम नीति आयोग ने तैयार किया और अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा हम उसका एक अगले साल पूरा कैंपेन के रूप में लॉन्च करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि मीडिया, यूथ
और देश में सस्टेनेबल कंजम्पशन की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा देने वाले सब लोग इन सारी बिहेवियरल प्रैक्टिस में, जो 75 हम लोगों ने इस समय एक्शन प्रोग्राम निकाले हैं, उसमें और भी ज्यादा हो सकते हैं। उस कंट्रीब्यूशन के लिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें शायद एकेडमिक्स में भी आपको उसको लेके आना सबके साथ, इसमें एकेडमिक से लेकर पंचायती राज से लेकर सब लोगों को। भारत सरकार का यह भी मानना है कि फ्यूचर जो एनवायरनमेंट के कंजम्पशन के लिए सर्कुलर इकोनॉमी भी फ्यूचर है, क्योंकि रीयूज, रिसाइकिल एंड रिप्रोड्यूस, अदरवाइज आप धरती से लेते जाएंगे और रीयूज और रिसाइकल नहीं करेंगे। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने भी अभी वेस्ट रबड़ यूज के लिए, ई वेस्ट के लिए नए नियम निकाले हैं, ताकि अभी जितना मोबाइल हम यूज कर रहे हैं इसका ई वेस्ट को कल को कहाँ जाएगा। जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है। तो जो रीयूज और रिसाइकिल है, सर्कुलर इकोनॉमी, फ्यूचर में एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए और उसके लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा इकोनॉमी का भी माध्यम होने वाला है, जिसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज में। आप देखिए हिस्ट्री में सदियों से कभी कोई भी बड़ा चेंज आया नहीं है। कोई भी बड़ा हिस्टोरिक चेंज के पहले कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है। आप जंगीज खान का आप देखिए, या उसके पहले आप ग्रीस से अलेक्जेंडर निकले, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई क्लाइमेट चेंज का रीजन है। उसके पहले जो यूक्रेन तरफ से यमुना कल्चर निकले, सब क्लाइमेट चेंज होता है। उसके 30, 40, 50 साल के बाद लोगों को इधर उधर मूव करने का एक मूवमेंट होता है। और हम अभी वर्ल्ड एक ऐसा विलेज हो गया है कि ऐसा मूवमेंट तो अभी होगा तो वॉर ही होगा। तो ऑब्वियसली वो तो हमें करनी नहीं है। तो हमें ये जो क्लाइमेट चेंज को आप जो कर रहे हैं, एनर्जी सफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सब करके हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये भी तो पकड़ के चलना पड़ेगा कि भाई हो गया, अब चेंजेस हो गया, इसके हिसाब से ये तो होना ही है। तो इसको लेकर के आपने एक इसमें लिखा है, आपका COP27 में आपका पॉइंट था ये, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। आप इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट्स था, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। बिकॉज वो एज अ सिटीजन हमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी, राहत देगी। उसके ऊपर आप थोड़ा। ऐसा है कि इस कॉप में भी यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के द्वारा आह्वान किया गया था कि हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से, IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को शुरू किया है। और उसमें हमने कंट्रीब्यूशन देते हुए भारत के कंट्रीब्यूशन को बताया भी था कि बे ऑफ बंगाल में भारत ने लगभग 11 देशों को ये, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो जानकारी देने के बाद, विशेष रूप से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में हमारे जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्र हैं उसमें लगातार तूफान आ रहे हैं। और जब अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका मजबूत होता है तो ये जो आने वाले तूफान होते हैं, समय से पहले लोगों को हटाया जा सकता है, समय से पहले लोगों को चेतावनी दिया जा सकता है। और इसमें जो रिकॉर्ड भी है वो रिकॉर्ड बताता है कि 90% से ज्यादा लोगों के जान माल की सुरक्षा भी करी है। पिछले सालों जब भारत के पूर्वी और पश्चिमी में 2 अलग अलग तरह के तूफान आए थे, जिसको हम ताउते कहते हैं और आम्फान कहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट केवल ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो पूरे बे ऑफ बंगाल में जो बाकी के भी जो क्षेत्र हैं उसमें भी वो तूफान आने का है। और भारत ने जो CDRI बनाया है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, उसमें पिछले ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जमाइका, फिजी, उन देशों के पास ये व्यवस्था नहीं थी कि सैटेलाइट से उनको उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी मिल जाए। तो भारत ने अपने इसरो के साथ प्रस्ताव किया और इस बार हमारे CDRI ने प्रधानमंत्री जी के उस विषय को आगे बढ़ाते हुए आयरिस कंट्री के लिए एक एक्शन प्लान भी दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का मानना, और भारत भी इस बात को मानता है कि जो दूर दराज रहने वाले जो द्वीपों में लोग हैं, किसान हैं, वर्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनको ये एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का हम एनवायरनमेंट और ग्लोबल थ्रेट बार बार देख रहे हैं, मौसम में परिवर्तन है, और हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक बहुत अच्छे स्तर पे आज इसको एसेस करने का एक साइंटिफिक सिस्टम बना है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ये एक तरीके के हर व्यक्ति का, दुनिया के हर कोने में रहने वाले व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए।
उसको पता होना चाहिए कि थ्रेट कब आने वाला है, विशेष रूप से प्रकृति का जो थ्रेट है। और इसको भारत ने समर्थन किया है, इस कॉप में भी हमने समर्थन किया और कॉप के एक डिसीजन में भी उसको शामिल किया गया। सर, इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बियॉन्ड जस्ट स्टॉर्म अलर्ट, जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी, अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो कोस्टल सिटीज है, इसका कोई ट्रांजिशन प्लान होगा अगले 10-20 साल में? देखिए, लो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी के लिए हमको जाना होगा, और इसलिए आपने जैसे देखा होगा कि भारत ने बहुत समय से पहले अपने रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। उसका अर्थ यही है कि हम लो कार्बन एमिशन की ओर जाने का है। जैसे एक छोटा सा विषय जो पिछले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है कि बल्ब में हमने जो एलईडी बल्ब का प्रयोग किया, तो एक तरीके से जो हम ऊर्जा बल्ब में है, अगर हम उसको लो कार्बन के स्तर पे लेके जाते हैं तो हम काफी सेविंग के स्तर पे जाते हैं। सेम स्तर पे अलग अलग स्तर पे बनने वाले जो हाउसिंग प्लान है, उसमें हम कैसी ग्रीन टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। और उससे बड़ी बात है, जब मैं पिछले दिनों आइवरी कोस्ट में जो डेजर्टिफिकेशन को लेकर के है, क्योंकि शहरों के विकास के कारण और बाकी चीजों के विकास के कारण हमारी जमीन की जो उत्पादकता है, ज्यादा हम अगर उसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली धरती की उत्पादकता खत्म होनी है, तो उसके लिए भी फूड सिक्योरिटी का खतरा पैदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारत ने दुनिया में यूनिक प्रोग्राम चलाया है, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं, हिंदी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अल्टीमेटली फार्मर्स को भी जब ये पता होगा कि उसकी जमीन में जो यूरिया को यूज कर रहा है वो उसके अनुकूल है या नहीं है, ज्यादा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो यूरिया के प्रयोग को कम करते हुए जमीन की उत्पादकता को बढ़ाना। सरकार के द्वारा गंगा के आसपास लगभग जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, वो इसी बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है कि भविष्य में आज तो हम जमीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपजाऊ जमीन का लंबे समय तक अगर इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो वो लैंड डिग्रेडेशन की ओर जाने वाला विषय रहेगा। और इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी है, उनको एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग देना। इतना बड़ा जो आयुष का डिपार्टमेंट भी हम लोग चलाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी की जो थ्रेट है, क्योंकि मनुष्य अपने कंजम्पशन के लिए, चाहे हम अपने फूड में इस्तेमाल करें, चाहे ऑयल में इस्तेमाल करें, चाहे कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करें, चाहे एनर्जी में इस्तेमाल करें और चाहे मेडिसिन में इस्तेमाल करें, कंटिन्यू हम बायोडाइवर्सिटी का कंजम्पशन करते हैं। वो जो कंजम्पशन है उसका भी सस्टेनेबल पैटर्न होना चाहिए, तभी जाकर के हम फूड से, हंगर से, वाटर से और नेचुरल जो क्लाइमेटीज है उससे रक्षा करते हुए एक अच्छी पृथ्वी का निर्माण कर पाएंगे। और ये पूरा कंपोजिट रूप से सोचने का विषय है जिस पे सरकार कार्य कर रही है। थैंक यू सर। एक ही पॉइंट, उसके बाद आई थिंक आपने भी पढ़ा होगा, एक वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 36 डिग्री 36-35 डिग्रीज पे हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर भी वही रहे और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 90% के ऊपर रहे और बारिश हो ना, और वो ऐसे रहे, बिकॉज अभी जैसे आप बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी हवा में मिल के उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, उसी हिसाब से जितना एयर वार्म होते जाता है उतना ही उसके अंदर वाटर वेपर भी रहता है, ह्यूमिडिटी। तो ये बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी अगर 90% के ऊपर हो और बाहर का टेम्परेचर 35-36 डिग्रीज हो, तो ह्यूमन बीइंग स्वेट से बॉडी कूल नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो पूरा प्रक्रिया है, अगर बॉडी 5-6 घंटे के अंदर कूल नहीं होता है तो आदमी टॉक्सिफाई होके वो मर भी सकता है। तो ये बोला जाता है कि अगले 15-17 साल 20 साल में इंडिया के साउथ के कोई स्टेट्स के सिटीज जैसे चेन्नई या कैलकाटा, ये सब जगह पे ऐसा होने का चांसेस है कि पूरा का पूरा सिटी का टेम्परेचर ऐसा होगा कि आप बगैर एसी के बैठ नहीं सकोगे, और अगर एसी चलाओगे तो उसमें दूसरा उसका हीट का, ये एक अलग टाइप का डिजास्टर आने का चांस है। उसके लिए बोलते हैं कि अर्बन डिजाइन चेंज होना चाहिए। लेकिन आज अगर मैं अपनी बात करूं, बॉम्बे में मुझे तो कुछ म्युनिसिपालिटी या किसी का कोई डिजाइन कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई एस्थेटिक डिजाइन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको रिफ्लेक्टर्स लगाना ही पड़ेगा, आपको एसी का वेंट्स इस तरह से लगाना पड़ेगा, ये आपको मतलब ये एक अर्बन डिजाइन में अभी तक मैंडेटरी आया नहीं है सर। ऐसा है कि इसको लेकर के अलग अलग दुनिया में कन्वेंशन है, जिसको किगाली अमेंडमेंट कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है।
कि अल्टीमेटली हमारे जो जितने भी एयर कंडीशनर है उनसे निकलने वाली गैसेस से भी खतरा है। कुल मिलाकर ये खतरे का जो सारा सोर्स है हमारा माइंडलेस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है। मनुष्य जितना प्रकृति और नेचर के साथ एकत्व करके रहेगा उतना जरूरी है, लेकिन आज के समय में हम लोगों को जब क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके साथ एक बैलेंसिंग अप्रोच भी होनी चाहिए। और वेस्टर्न पेडिग्राम जो डेवलपमेंट का है वो कई मायनों में इस चीज का जवाब नहीं देता है, और इसलिए इस चीज का जो जवाब है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ नेचर के साथ बैलेंस वाली लाइफ जीनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है, जो हमें बड़े परिवर्तनों के साथ अपने छोटे छोटे बिहेवियरल विषय हैं उसको भी चेंज करना चाहिए। और इसलिए केवल एनर्जी आए वो पूरा उपयोग नहीं, उसका माइंडफुल यूटिलाइजेशन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से जो चेंज आया है, परिवर्तन आया, उसी के कारण नई समस्याएं और थ्रेट पैदा हुई है। इसलिए जो लोएस्ट स्तर पर व्यक्ति, समाज, देश जो भी है उसको बराबर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, उसका एडवांसमेंट करना, उसका प्रोटेक्शन करना, नेचर को भी प्रोटेक्ट करना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा सबको बेटर जिंदगी देना, ये दोनों विषयों का बैलेंस ही मिशन लाइफ है। और यही भारत की सोच है, और यही इस बार के कॉप में भी एक तरीके से प्राइम्बल देते हुए लॉस एंड डैमेजेस, न्यू क्वांटिफाइबल गोल, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस, मिटिगेशन मेजरमेंट, उसमें ये सारा रिफ्लेक्ट होता है, जो उसका नेट रिजल्ट भी आया है। थैंक यू सर। हो सकता है कि अभी जैसे कि ये हमने शौचालय का पूरा ये किया था अभियान, और ओडीएफ को कंट्रोल करने के लिए रूल्स लॉज भी तो लागू थे। आज सीट बेल्ट पहने नहीं तो पेनल्टी लगता है, तो इस हिसाब से आपको लगता है कि ये बिहेवियरल चेंजेस के लिए शायद कोई लीगल या पीनल प्रोविजंस होना चाहिए आगे, बिकॉज नहीं तो आदमी इतना जल्दी बिहेवियर तो चेंज नहीं करेगा, तो आदमी खतरे में भी आएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।